Welcome back. Yesterday we started with basics of accounts. I think before we start with today's session, we can very quickly revise what we studied yesterday. The first question I asked you yesterday was, what do you mean by accounts? Accounts is a language. Why do we use language? We use language for communication. Accounts is a language that is used to communicate and record financial transactions. Now, what do you mean by financial transaction? Any transaction which is in terms of money or can be expressed in terms of money is a financial transaction. Is accounts a language that is used only by the people who are into business? The people who are into business definitely use this language, but even if you are not into business, you can use this language if you enter into a financial transaction. For smoothly running of any language, the language needs to have rules. But if there are n number of people involved, can we make n number of rules? No. We always divide the people for whom we have to make the rules into certain categories. Exactly in the same way, there are millions of accounts in this world, but we cannot have millions of rules. Therefore, we also categorize account. So, what do you mean by accounter? Accounter is detailed financial information about a person, thing, income or expense. And how many categories we divide account into? We divide it into majorly two categories, personal and impersonal. But impersonal further gets divided into real and nominal. So eventually we say that we have three categories, personal, real and nominal. It is very important to understand each and every category of account, because until and unless we can lock a category, we cannot apply rules, will become handicapped. So when do we say that an account is a personal account? We say an account is a personal account or is categorized as a personal account if it gives detailed financial information about a person. Which kind of person? Either a natural person like you and me or artificial persons like bank. When do we say that an account is a real account? An account is categorized as a real account when it gives detailed financial information about a thing. About a asset. What do you mean by asset? Anything what you possess and it can be sold is known as real account. It includes both tangible and intangible things. What do you mean by nominal account? An account is categorized as nominal account if it gives detailed information about either income or expense or gains or losses. It is categorized as a nominal account. Once we categorize our account, why did we create categories? We created categories so that we can make rules. So overall accounts is divided into how many rules? Accounts is divided into 3 rules. Why 3 rules? Because eventually we have 3 categories. So 3 categories, therefore we have 3 rules. And what are the rules? Personal account, debit the receiver, credit the giver. Real account, debit what comes in, credit what goes out. And nominal account, debit the expenses and credit the income. I repeat, personal account, debit the receiver, credit the giver. Real account, debit what comes in, credit what goes out. And nominal account, debit the expenses and losses, credit the incomes and gains. Well, in the last class, I just made you write these rules. I am yet to explain these rules. तो ये एक कल के सेशन का रिवीजन हुआ. नाउ वी स्टार्ट विथ टुडे सेशन. यहां तक आपने कल अपने रजिस्टर में लिख भी लिया था, द क्लास रजिस्टर. नाउ वी स्टार्ट विथ टुडेज सेशन. वी स्टार्ट विथ अ स्मॉल असाइनमेंट. वी स्टार्ट विथ अ स्मॉल असाइनमेंट विच विल बी डूइंग टुगेदर. कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स आपको समझ गया ना बेटा? जो अकाउंट इंसान के बारे में बताए वो पर्सनल अकाउंट, जो अकाउंट वस्तु के बारे में बताए इज अ रियल अकाउंट, जो अकाउंट इनकम एक्सपेंस के बारे में बताए इज अ नॉमिनल अकाउंट. सो वी कैन स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल असाइनमेंट. आई एम वेरी श्योर कि आपने यहां तक अपने क्लास रजिस्टर में लिख लिया है. वी स्टार्ट विद अ स्मॉल असाइनमेंट. कैटेगराइज द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू ऑब्वियसली पर्सनल, रियल और नॉमिनल. कुछ अकाउंट्स के नाम मैंने लिखे हुए हैं, आपको कैटेगराइज करना है कि ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है. किस बेसिस पे? एक ही लॉजिक पे. कौन सा लॉजिक? जो अभी सिखाया. किसी इंसान के बारे में है तो पर्सनल अकाउंट,
किसी वस्तु के बारे में है तो रियल अकाउंट, और इनकम या एक्सपेंस के बारे में है तो नॉमिनल अकाउंट। अभी आपको ये लिखना नहीं है, आप सिर्फ पहले सोच के रखिए। आई विल गिव यू अनदर 1 मिनट टू थिंक ओवर दिस। आप ये सोच के रखिए कि लैंड कौन सा अकाउंट है, रोहन कौन सा अकाउंट है, विच अकाउंट इज गुडविल, रेंट, कैश, बैंक, repairs, patents, shares, furniture and current account. Well, this is a small assignment. I'll give you time to write down. Relax. I'll give you time to write down. Right now, you have 1 minute to figure out whether these accounts are personal, real or nominal. Obviously, one account can fall only in one category. Come on, go for it. You have 60 seconds to answer this. The time is running out. Come on, make it fast. Land account. सोच के देखिए कौन सा अकाउंट है. रोहन, गुडविल, रेंट. Cash account can be dicey. Cash account. Bank account. Repairs. Patents. Shares. Furniture. Current account. You still have 40 seconds to think over it. 30 seconds. Twenty seconds. Come on, think. Don't give up. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Here we go. Land account. According to you, if I talk of land account, what is land account? The only question you need to ask yourself is, sir, does land represent any person? No. So it's not a personal account. Does it represent an asset, that is a thing that can be sold and purchased? Yes. So land is a real account. Next one. Rohan account. Does Rohan represent any person? Yes, sir. It represents Rohan. So it's a personal account. Goodwill. गुडविल रिप्रेजेंट्स अ पर्सन? नो. एक इंसान का गुडविल होता है, इंसान गुडविल नहीं होता, दोनों में फर्क है. वीपीए का गुडविल होता है, वीपीए गुडविल नहीं है. वीपीए इज अ पर्सन, इंसान का गुडविल होता है. इंसान इज अ पर्सनल अकाउंट, गुडविल इज अ थिंग दैट कैन बी सोल्ड. सो गुडविल इज अ रियल अकाउंट. रेंट. रेंट इज इट अ पर्सन? नो. रेंट कोई इंसान है? नहीं. रेंट कोई वस्तु है? नहीं. रेंट कोई इनकम या एक्सपेंस है? यस. लैंडलॉर्ड के लिए इनकम है, टेनेंट के लिए एक्सपेंस है. सो रेंट इज अ nominal account. Cash. Is it a person? No. Is it something that can be purchased and sold? No. But cash is a medium to purchase and sell something. Therefore, cash is a real account. Through cash, you purchase and sell things. So, cash is a real account. Next, bank account. Bank account. Is it a person? Yes, sir. Bank is a artificial person. So, bank is a पर्सनल अकाउंट. रिपेयर्स. इज रिपेयर अ पर्सन? नहीं सर, पर हम किसी इंसान से ही करवाते हैं ना बेटा. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप इंसान के थ्रू ही करते हो ना, तो क्या हर अकाउंट पर्सनल हो गया? नहीं. इंसान का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है. रिपेयर इंसान नहीं है. रिपेयर कोई वस्तु है जिसको आप बेच सकते हो? नहीं. इज रिपेयर अ इनकम और एक्सपेंस? यस. फॉर मी, इफ आई एम डूइंग अ रिपेयर, देन इट्स अ इनकम. फॉर मी, इफ आई एम गेटिंग समथिंग रिपेयर्ड, इट्स माई एक्सपेंस. So repair is a nominal account. Patents. Now what exactly are patents? Have you heard of this word? Definitely. Patients नहीं.
पेशेंट्स मतलब पर्सनल अकाउंट. वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ एनी डिजीज राइट नाउ. पेटेंट, व्हाट डू यू मीन बाय पेटेंट? आपने सुना होगा ना, इस बंदे ने इस चीज का पेटेंट करवाया, इस ऑथर ने कॉपीराइट करवाया, ये फॉर्मूला पेटेंट है. लाइक यू आर क्रेजी फैंस ऑफ पेप्सी और कोका कोला. यस, पेप्सी और कोका कोला, यू पीपल आर क्रेजी फैंस फॉर इट. कुछ लोग तो इस हद तक फैन है कि उनको आंख बंद करके अगर मैंने कोका कोला टेस्ट करवा दिया तो वो ये बोल सकते हैं कोका कोला नहीं है, ये पेप्सी है, ये पेप्सी नहीं है, ये कोका कोला. इतने डाई हार्ट फैंस. वेल, बट हाउ एग्जैक्टली इज पेप्सी और कोका कोला मैन्युफैक्चर्ड? व्हाट इज दैट सीक्रेट फॉर्मूला? हाउ मेनी ऑफ देम नो इट? That formula by which you prepare Pepsi or Coca-Cola, that formula is patent. In India, in summer season, we use the soft drink known as Rasna, right? Almost everybody of us have had Rasna some point of time in our life. When we were children or like any time, we have had Rasna some time in our life. And we also know how to make Rasna, right? We also know how to make rasna. What do? We take up a pouch, we take up some water, we add some substances, we add sugar, we stir it well, and that's ready. Yes. So do you know how to prepare rasna? Exactly. You know how to prepare rasna the way you know how to prepare Maggi. Can you say मुझे मैगी बनाना आता है? नहीं, आपको मैगी बनाना नहीं आता. आपको सिर्फ पैकेट खोल के चीजों को मिक्स करना आता है. वो जो मसाला है, मैगी का मसाला है, वो आपको कहाँ आता है? That is a patent. Right? So patent is nothing but a formula of making a particular thing. It can be Maggi, it can be Pepsi, it can be Coca-Cola, it can be Rasna, it can be KFC if you are a non-vegetarian. Well, I don't know much about it. I am not a correct person. But again, the formula to make a thing is known as patent. Can it be sold? Yes. Is it a person? No. Is it something that can be sold? Yes, I can sell the formula. I can sell the formula of making Coca-Cola. So it's a thing. Can it be sold? Yes. Is it tangible or intangible? Doesn't matter, sir. Doesn't matter. Why? We are categorizing into personal, real and nominal. We are not categorizing into whether it can be perceived by our senses or not. गलत जगह गलत चीज नहीं करने का. So patent is a thing. It's a वस्तु. It's a asset. Yes. जिस बंदे ने बनाया उसके लिए asset है. And can it be sold? Yes, it can be sold. So patent is a real account. Shares. What do you mean by shares? कम से कम ये वर्ड हमने हमारे घर में सुना है. पापा काफी बार बोलते हैं मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे, मैंने इन्फोसिस के शेयर्स खरीदे. यस, रिलायंस इज अ पर्सनल अकाउंट, इन्फोसिस इज अ पर्सनल अकाउंट. उनके शेयर्स इज नॉट अ पर्सनल अकाउंट. बेटा देखो, हर वस्तु किसी ना किसी इंसान को तो बिलोंग करती है ना. माई कार बिलोंग्स टू मी. I am a personal account. My car is not a personal account. There is a person and there are certain things that belong to this person. दोनों में फर्क है. जो भी इंसान है वो पर्सनल अकाउंट है, वो इंसान की जो वस्तुएं हैं वो रियल अकाउंट है. सो शेयर्स, कैन इट बी सोल्ड? यस सर, इट कैन बी सोल्ड इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस. सो शेयर्स इज ऑल्सो अ रियल अकाउंट. फर्नीचर, अगेन, इज इट समथिंग? यस. Is it an asset? Yes. Can it be sold? Yes. So it's also a real account. Next one, current account. Well, quite common sense. Current is a person. So current account is a personal account. Fine. Now you can write down in your class register, and please understand, it's compulsory to write down in a class register. You just cannot enjoy my videos by listening it. You have to write it down, otherwise the backlog will really become very heavy. We cannot afford to have it. So please, I am giving you time, you can just write it down. So this is the question. Categorize the following accounts into personal, real or nominal. Please write down the question. Categorize the following accounts into personal, real or nominal. Please write it fast. Categorize the following accounts into personal, real or nominal. It will have two columns, the name of account and the category of account. The name of account and the category of account. Please start writing.
I told you I'll give you sufficient time to write down. So please start writing. I'll just scroll down. In case if you have not completed writing, in case, you can pause the video and write it down. I'll just scroll down in 10 seconds. So in case if you have not written, please pause the video. Let's move. All the accounts in one single frame for you. Heading for sure you would have written. All these accounts in a single frame for you. Come on. You have another 10 seconds before we move to the next page. Please write it fast. And as I said, in case if your speed is a bit slow, you always have a liberty to pause the video and write down. Let's go. Recording of transaction in accounts. Hold on. You wrote this, right? You have done with this completely? Yes. In case अगर ये लिखने के बाद पेज खत्म हो गया या 2-3 लाइन ही बची है तो प्लीज कम ऑन अ फ्रेश पेज. प्लीज कम ऑन अ फ्रेश पेज अगर 2-3 लाइन ही बची है लास्ट पेज में तो, एंड गिव द हेडिंग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन अकाउंट्स. Recording of transaction in accounts. Now, kindly give the heading. Recording of transaction in accounts. Chale? Great. Now, the first question again that comes is, why do we need to record the transactions? Why do we need to record the transaction? Because your mind has a limited capacity. Well, Albert Einstein told that we are not even using 1% of our mind or 2% of our mind. I don't remember. Again, my mind has a limited capacity. Well, if I have to ask you, come on, let's do it real time. Well, accounts जब भी हम समझते हैं ना real life में समझे तो the craze and the entertainment is at a different level, right? Okay, tell me, चलिए, let's do this exercise. Tell me, what did you have today for the breakfast? Come on, quickly. It's more like a rapid fire. Come on, what did you have in breakfast today morning? Probably most of you would have thought of the correct answer, what you had today morning. Great. Now, what did you have for breakfast 3 days back? Exactly 3 days back, what did you have for your breakfast? There might be some people for whom it would be like very clear. मैं रोज ही cornflakes खाता हूँ. That's okay. Okay, let's move a bit further backward. 2 हफ्ते पहले, 15 दिन पहले आपने डिनर में क्या खाया था? 15 दिन पहले आपने डिनर में क्या खाया था? आई एम वेरी श्योर दैट नॉट इवन 5% ऑफ यू रिमेंबर कि 15 दिन पहले आपने डिनर में क्या खाया था. सर क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी खाया हो, बात खत्म हो गई. ऑब्वियसली कुछ फर्क नहीं पड़ता. आपने 15 दिन पहले क्या खाया उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता. पर 15 दिन पहले की बात अगर आपके दिमाग में स्टोर्ड नहीं है, एंड द माइंड इज सो अमेजिंग, चेक दिस, द माइंड इज सो अमेजिंग. 15 दिन पहले आपने क्या खाया ये आपको याद नहीं है, पर 100% नर्सरी में जो आपने ABCD EFG HI JK LMNO PQ सुर के साथ
RSTUVWXYZ, ये आपको याद है. नर्सरी गाइस, नर्सरी. आज से 13 साल पहले आपको जो पढ़ाया गया वो आपको याद है. यू रिमेंबर योर नर्सरी राइम्स ऑल्सो, यू रिमेंबर सम ऑफ द लुलावेज ऑल्सो. बट 15 दिन पहले की वस्तु आपको याद नहीं है, पर 12 साल 13 साल पहले की चीजें आपको याद है. इजंट आवर माइंड सो अमेजिंग? सर हम बोलना क्या चाह रहे हैं? हम आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि 15 दिन पहले आपने क्या खाना खाया ये आप भूल गए, नॉट अ प्रॉब्लम. 15 दिन पहले अगर आपने किसी को 2 लाख रुपए उधारी दी और आप भूल गए तो नहीं सर, हम ऐसी चीजें नहीं भूलते. भूल सकते हैं, दिमाग है, भूल सकता है, डेफिनेटली भूल सकता है. या आप गजनी से इंस्पायर हो गए तो कोई रीजन से आपके दिमाग से निकल गया कि आपने किसी को 2 लाख रुपए दिए. ऐसा होता है. चलो 2 लाख रुपए की बात नहीं है, पर काफी बार ऐसा होता है कि आपने किसी को 200 रुपए दिए, हो सकता है हम कभी भूल जाए. अच्छा, हमने जिसको पैसे दिए अगर हम ही वो भूल गए तो सामने वाला तो भूल के ही बैठा है. वो थोड़ी ना आके हमें याद कर रहा है, यू नो आपने हमें इतने पैसे दिए थे, आप वापस ले लो. So what do we do? What I just want to tell you is, you do a lot of financial transactions every day. You do a lot of financial transactions every day. Is it really possible and feasible for your mind to remember everything? Let's take another real life example. Your parents give you pocket money of 2000 per month. 2000 रुपए की पॉकेट मनी आपके मॉम डैड ने, चलो टेल मी ऑन रियल टाइम, 2000 रुपए आपके मॉम डैड आपको मंथली पॉकेट मनी देते हैं. यस. एकदम से एक दिन पापा ने आपको डिनर टेबल पे बुला लिया और आपसे हिसाब मांगा कि पिछले महीने मैंने 2000 दिए थे ना, मुझे फटाक से बता 2000 रुपए कहां खर्च हुए. जस्ट टेल मी वेरी ऑनेस्टली, आपके दिमाग में पूरा 2000 का हिसाब स्टोर्ड रहता है क्या? जस्ट टेल मी. मेजर आइटम्स आप बता दोगे, पापा मैंने 800 रुपए की बुक्स खरीदी, 300 रुपए का पेट्रोल डलवाया, पर डू यू रियली रिमेंबर दैट आपने 40 रुपए का एक बर्गर खाया था? डू यू रियली रिमेंबर? डज योर माइंड रिमेंबर एवरीथिंग? 2000 का हिसाब आपका दिमाग रख नहीं सकता, यहां करोड़ों का हिसाब कैसे रखेगा? पॉसिबल ही नहीं है. एंड दैट इज द लॉजिक. We have to record the transaction and record not only in our mind but also in one book. Why in one book? Because even if your mind forgets it, the book will remember it, and you can always refer that book to recollect the financial transactions. So recording, देखिए मेरी क्लास में मैंने पहले दिन भी बताया था, रटाने वाला कोई हिसाब नहीं होता. For everything in my class, one thing is very famous. That is, only one question is very famous. And what is that question? That question is the why factor. Why? In Hindi, kyun? That's the only question I'm going to ask you. Why? क्यों? एंड दैट इज द ओनली क्वेश्चन यू आर ऑल्सो सपोज टू आस्क मी कि सर ये ऐसा क्यों होता है. सो व्हेन आई से दैट वी हैव टू रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन इन अकाउंट्स, यू ऑल्सो नीड टू नो व्हाई. बिकॉज द माइंड हैज सम limited capacity to remember things. So if we record it in a book, on a piece of paper, there is zero chance that you will forget it. Fair enough? तो ये heading दी आपने, recording of transaction in accounts. Did you give this heading on a fresh page? Recording of transaction in accounts. Let's move. Hold on. मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा, सुन लो. Enjoy this. Journal. What is journal? It's name of a book. एक किताब का नाम है जर्नल. सर ये किताब कैसी दिखती है? ये कोई किताब एलियन वर्ल्ड से नहीं आई है, एक बेसिक किताब है. योर रजिस्टर कैन बी योर जर्नल, योर नोटबुक कैन बी योर जर्नल. द नेम गिवन इज जर्नल. What is journal? Let's check out. The first point, the primary book in which the financial transactions are recorded. Journal is a book. The primary book in which you record your financial transactions is known as journal.
How do we record the transaction? We record the transaction using the rules. What are the rules? What we discussed yesterday? No, you just wrote it yesterday. We are yet to discuss it. We'll be discussing it in couple of minutes. So the primary book in which the financial transactions are recorded. Why financial transaction? Because accounts is a language that records only financial transaction. So a primary book in which our financial transactions are recorded is known as journal. How do we record it? Using the rules of accounts, which we are going to see in couple of minutes. Okay, every person shall maintain a separate journal in which only those transactions shall be recorded in which that person is involved. Now, what is this? Well, tell me, like when you join a class, like you joined my class, or let's take in past, in standard 10th, you would have joined, say, some maths class. In maths class, wherever you joined the maths class, there would be somewhere around 20, 25, 30 students minimum. The maths teacher is teaching you a particular concept. Now, just tell me, if 30 students are attending his class, don't you think each student has his or her own notebook or register? Isn't it funny? मैथ्स टीचर एक ही है, वो एक ही कंसेप्ट आपको पढ़ा रहे हैं. तो 30 स्टूडेंट जो बैठे हैं, द 30 स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग, दे आर मेंटेनिंग 30 डिफरेंट रजिस्टर्स. ईच वन इज मेंटेनिंग ओन रजिस्टर. हाँ सर, क्यों? अरे एक स्टूडेंट को बोलो कि लिख ले, बाकी सब उसका जेरोक्स निकाल लेना. पर ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता. हाँ, कभी आपका रजिस्टर गुम गया, फिर आपने जेरोक्स निकाल लिया फ्रेंड का, दैट्स अ एब्नॉर्मल थिंग. बट बाय एंड लार्ज व्हाट हैपेंस? By and large, what happens? If there are 30 students, they'll be maintaining 30 registers. If there are 100 students, everybody is maintaining their own register. Why? क्योंकि हर इंसान अपने तरीके से समझ के वो रजिस्टर में लिखता है. Yes or no? Exactly in the same way, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक किताब में लिखे जाते हैं जिसका नाम है जर्नल. रूल्स फॉलो करके लिखे जाते हैं जो हम सीखने वाले हैं. बट हर इंसान खुद का जर्नल अलग मेंटेन करता है. Why? Makes a logical sense. मैंने आज सुबह ब्रंच किया. सपोज आई डिड अ ब्रंच इन रैडिसन एंड देयर वाज अ बिल ऑफ 2500. मैंने रैडिसन में जाके ब्रंच लिया, 2500 रुपए का खर्चा आया. आर यू रियली इन्वॉल्व? नो, यू आर नॉट इन्वॉल्व. आप अपने घर पे खाना खा रहे हो. विपुल सर जाके रैडिसन में ब्रंच करके आए, तो इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली फॉर विपुल सर. So who the hell is going to record it? Only विपुल हो रहा. So मैंने जाके रैडिसन में 2500 का खर्चा किया, तो मैं अपने जर्नल में लिखने वाला हूं. जर्नल क्या है बेटा? एक किताब का नाम है. रजिस्टर के ऊपर जर्नल लिख दो, किताब का नाम है. तो मेरी किताब अलग है, आपकी किताब अलग है, थर्ड पार्टी की किताब अलग है, क्योंकि हम सबके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अलग है. आपने पेट्रोल पंप पे जाके 2 लीटर पेट्रोल भरवाया और 150 रुपए का खर्चा हुआ. एम आई इन्वॉल्व? नो. हु इज गोइंग टू रिकॉर्ड इट? यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट बिकॉज इट इज योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. सो द concept is very simple. The concept is very simple. If it is your financial transaction, you have to record it. If it is my financial transaction, I am going to record it. If it is a financial transaction for some Mr. Ram, he is going to record it. If it is for Rahim, he is going to record it. बोलने का मतलब, मेरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए मैं अलग किताब मेंटेन करूंगा, आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आप अलग किताब मेंटेन करोगे, एंड वी विल रिकॉर्ड ओनली दोस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन आवर जर्नल इन विच वी वर इन्वॉल्व. मुंबई में अगर कोई बंदा मरीन ड्राइव पे एक अपार्टमेंट खरीद रहा है 80 करोड़ का, और वो बिल्डर को पैसे दे रहा है, Are you or me involved? No. Will we record it in our journal? नहीं. पूरे विश्व के ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करने हैं? नहीं, हमें सिर्फ हमारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं. Yes, therefore, every person shall maintain his separate journal in which only those transactions shall be recorded in which he is involved. I hope it's pretty simple. Yes. तो ये हेडिंग आपने दे दी थी, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन अकाउंट्स. ये हेडिंग दे दी थी आपने. अब ये आपको लिखना है. कम ऑन, प्लीज राइट इट डाउन. यू हैव टाइम. प्लीज राइट इट प्रॉपरली. और ऐसा एक एक लाइन छोड़ के लिखिए.
please maintain the register very properly. This register is important not only at this level but all the future levels. So please maintain it properly. All the 3 points. We are scrolling down in another 10 seconds. In case if you have not written, please pause the video and write it down. Right, we're moving ahead. You're done with this? Now, again, I'll give you time to write this. Just listen. Now, what exactly is a journal entry? Journal मतलब एक किताब का नाम जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं. हम किताब में क्यों रिकॉर्ड करते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग की लिमिटेड कैपेसिटी है. दिमाग अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भूल गया तो हमें बहुत सिवियर लॉस हो सकता है. इसलिए कभी भी बेटर है कि हम एक किताब में लिख दें ताकि हम भूले नहीं, और भूल भी गए तो याद कराने के लिए किताब है. Therefore, that kitab, that book is known as journal. Now, what do you mean by journal entry? Well, when you record the financial transaction in a book known as journal, I repeat, when you record the transaction in a book known as journal, that means you are entering that transaction in the book. You are entering that transaction in the book. This process is known as journal entry. The process of entering a financial transaction, recording a financial transaction in a book known as journal. I repeat, the process of entering or recording a financial transaction in a book known as journal, this process is known as journal entry. Right? Next one. You'll have time to write. पहले सुन लो आप. The recording in journal is done by giving double effects. What do you mean by double effects? Well, हर लैंग्वेज में रूल होते हैं कि कैसे लिखें. लेट्स अंडरस्टैंड इट. सपोज विच लैंग्वेज वी आर यूज्ड टू? हिंदी एंड इंग्लिश. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. Now, let's assume that, okay, right, and these are some of the lines on a page. Now, when we write in English, how do we write? I am having a leisure time. Well, just to remind you, you started from left and you moved to right. You started from left and you moved towards right. Moreover, you wrote about the line. आपने लाइन के ऊपर लिखा और लेफ्ट से होते हुए राइट गए. यस. नाउ व्हेन आई टॉक ऑफ हिंदी, मैं कल, what do you say to exercise? व्यायाम. Oh, forget it. Not written Hindi for so many years. मैं कल स्कूल जाऊंगा. Well, anybody who is great at Hindi,
forgive my Hindi. Moral is not writing Hindi. Moral is to explain you that again when you are writing Hindi, you're going from left to right. Yes, you're going from left to right. But now you are writing below the line. Yes. So if you are writing English, you are writing above the line. If you are writing Hindi, you are writing below the line. Well, all those students who know Urdu, all the students who know Urdu, well, I also know Urdu. Fine. Let's write. मैं कल स्कूल जाऊंगा. अरे दैट्स उर्दू, ट्रस्ट मी. अब आप हंस रहे हैं वहां पे कि कुछ भी, सीरियसली दैट्स उर्दू. मैं कल स्कूल जाऊंगा. नाउ व्हेन यू आर राइटिंग उर्दू, यू आर गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. इजंट इट क्रेजी? अच्छा, अभी तक मैंने आपको मेरा ये टैलेंट तो दिखाया नहीं कि मुझे जर्मन में भी लिखना आता है, चाइनीज में भी आता है, फ्रेंच में भी आता है. नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं, चलो जो भी है. पर इंग्लिश 3 लैंग्वेजेस बोर्ड पे है. एक लाइन के ऊपर लिखा जाता है, एक लाइन के नीचे लिखा जाता है. कोई लेफ्ट से राइट लिखा जाता है, कोई राइट से लेफ्ट लिखा जाता है. बोलने का मतलब हर लैंग्वेज में लिखने का तरीका अलग होता है. हर लैंग्वेज में लिखने का तरीका अलग होता है. यस, वैसे ही अगर हम अकाउंट्स लैंग्वेज की बात करते हैं तो जब भी हमें कुछ लिखना है उसके 2 इफेक्ट्स होते हैं. मतलब अगर अकाउंट्स में हमें कुछ भी लिखना है तो हमें कम से कम 2 लाइन का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए उसे डबल इफेक्ट्स कहते हैं. We have to use minimum 2 lines. Hindi can be written in 1 line, English can be written in 1 line, Urdu can be written in 1 line, but Hindi and English can be written from left to right, Urdu can be written from right to left. In the same way, if you have to write something in the language of accounts, then minimum you require is 2 lines, and that 2 lines is known as double effect. And out of that, one effect is known as debit and the other effect is known as credit. I am yet to explain this. But sir, why double effects? Why again? Well, the moment you ask this question, why? Okay, trust me, many people across this country, rather majority people across this country will tell you, ये सालों से रूल चलते आ रहा है. It's something like you ask your English teacher, why do we write from left to right? What will she say? What will she say? आपने कभी पूछा नहीं, क्योंकि आप बहुत छोटे थे तब. वो आपको KG2 फर्स्ट सेकेंड में सिखाया गया था कि बेटा लेफ्ट से राइट लिख, तो आपने भी लिख दिया. हिंदी लाइन के नीचे लिखा, आपने लिख दिया. डिड यू एवर आस्क योर टीचर दिस क्वेश्चन कि क्या मजाक चालू है? इंग्लिश आप मुझे लाइन के ऊपर लिखवा रहे हो, हिंदी आप मुझे लाइन के नीचे लिखवा रहे हो. मैं हिंदी में लाइन के ऊपर क्यों ना लिखूं? तो क्यों फैक्टर, द वाई फैक्टर. Did you ever ask your standard 1 or 2 grade teachers? No. When you were in grade 1 क्या कहते हैं आप? standard 1, standard 2, तब आपने अपने टीचर्स से पूछा था ये? नहीं. और अगर पूछ भी लिया होता तो बाय एंड लार्ज आपको आंसर क्या मिला होता? ये एक सिस्टम है, इसी तरीके से लिखा जाता है. बट डोंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ आंसर फ्रॉम विपुल वोरा. देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग. And if reason goes to 200 years back, we'll go 200 years back. If it goes 2000 years back, we'll go 2000 years back. But accounts में अगर कुछ भी लिखना है तो 2 इफेक्ट्स, मतलब डबल इफेक्ट्स क्यों दिए जाते हैं? Why double effects? Reason is that accounts as a language records financial transactions. Come on, yes. Now just tell me, what do you mean by financial transaction? वापस वो definition मत बोलना. Anything that can be expressed in, नहीं, एकदम simple. What is a financial transaction? एकदम सिंपल वर्ड्स में व्हाट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. सर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब कहना है से कि वो, अगर हम हिंदी वर्ड यूज करते हैं तो कहना है से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज लाइक लेन देन.
लेन देन, मैंने कुछ लिया और कुछ दिया. व्हाट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कभी भी सोच के देखिएगा क्या होगा. आपने आज तक लाइफ में जितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए, आप सोच के देखिए क्या हुआ है. क्या हुआ है? लेन देन ही हुआ है ना. देन देन या लेन लेन ऐसा हुआ है क्या? Let's take again a real life. See, accounts, learn it with practical life, real life. You'll thoroughly enjoy and understand it. It's a new subject for you. Just don't panic. Don't panic. मैंने कल भी समझाया था, आज फिर बोल रहा हूं. आज तक एक स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने बोला मेरे को अकाउंट समझ में ही नहीं आया. Just enjoy it, guys. Enjoy it. It's just day 2. Just day 2. Just enjoy. मुझे एक बात बताइए, आप कभी अपने फ्रेंड्स के साथ ये अपना इंडिया में समोसा खाते हैं, पानी पूरी खाने जाते हैं, क्या होता है? क्या होता है? What does it? Tell me the process. What happens? सर कुछ नहीं, हम उसको 20 रुपए देते हैं, वो हमें 1 प्लेट समोसा दे देता है. हम उसे 10 रुपए देते हैं, वो हमें 6 पानी पूरी खिला देता है. यही होता है ना. मतलब आपने कुछ लिया और कुछ दिया. यस. कभी ऐसा होता है क्या आपने उससे समोसे भी ले लिए और पैसे भी ले लिए? ऐसा होता है क्या? या कभी ऐसा होता है कि आपने उसको पैसे भी दे दिए और समोसे भी दे दिए? ऐसा होता है क्या? नहीं. When we talk of a financial transaction, we receive something and at the same time we give something. Check out any financial transaction of this world. If it is a financial transaction, in very simple Hindi we can say it is लेन देन. एक हाथ से हम कुछ ले रहे हैं, दूसरे हाथ से हम कुछ दे रहे हैं. Yes or no? मेरे दादा, my grandfather used to use this particular sentence when he had to teach this life lessons to us. And he used this very famous sentence in his life whenever he was talking to me when I was a kid. Is that कि विपुल, दोनों हाथ में लड्डू नहीं मिलते. A very common dialogue. I don't know how many of you have also heard it from your grandparents. I'm pretty sure कुछ लोगों ने सुना होगा. दोनों हाथ में लड्डू नहीं मिलते. What do you mean by this? What do you mean by this? It means दोनों हाथ में लड्डू. लड्डू represents gain. दोनों हाथ में गेन नहीं होता बेटा. If you have to receive something, you have to forego something, correct? If you have to receive samosas, you have to forego your currency. If you have to receive pani puri, you have to forego your currency. Yes? Yes or no? If you have to score great marks, you want good marks, you have to forego your entertainment for some point of time. Though it's not financial, but just trying to make you understand that कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम हिंदी में कह सकते हैं लेन देन. इट कैन नेवर बी लेन लेन, इट कैन नेवर बी देन देन. इट हैज टू बी लेन देन एंड लेन देन. यस यस. मतलब हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं बेटा. हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं. यू रिसीव्ड समथिंग एंड यू गेव समथिंग. कम ऑन. यस. यू रिसीव समथिंग एंड यू गेव समथिंग. एंड दैट इज द लॉजिक कि अकाउंट्स में कुछ भी रिकॉर्ड करना हो तो सिंगल लाइन नहीं, डबल लाइंस का प्रयोग किया जाता है. और उसमें से एक लाइन को कहा जाता है डेबिट, दूसरे लाइन को कहा जाता है क्रेडिट. किसे डेबिट कहते हैं, किसे क्रेडिट कहते हैं, येट टू एक्सप्लेन. जस्ट चिल, एंजॉय द लेक्चर. यस. सो अकाउंट्स में अगर आप कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यू हैव टू यूज डबल इफेक्ट्स. ये हमारा पॉइंट था. वी स्टार्टेड विद जर्नल एंट्री. यस. अभी आपने लिखा नहीं है, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए. सो फन, व्हाट इज जर्नल एंट्री? जर्नल मतलब एक किताब जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं. किताब. और जब हम एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को उस किताब में रिकॉर्ड करते हैं, एंटर करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं जर्नल एंट्री. कैसे होती है? डबल इफेक्ट्स. क्यों? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज ऑलवेज लेन देन. डबल इफेक्ट्स. It means that whenever we record a transaction in journal, which transaction? Financial transaction, at least one account should be debited and at least one account should be credited. वन अकाउंट क्या होता है आपको पता है. अब एटलीस्ट एक अकाउंट डेबिट होता है. एटलीस्ट. वाई एटलीस्ट? क्योंकि 2-4 अकाउंट भी डेबिट हो सकते हैं. मैंने आपको यहां देखिए क्या लिखवाया. मैंने आपको ये देखिए क्या वर्ड लिखवाया था. मिनिमम 2 लाइन्स. मिनिमम. सो कैन वी हैव 3, 4, 5, 6, 7? यस, वी कैन हैव इट. मिनिमम 2 लाइन्स.
You can have. So at least one account is debit. Board पे देखिए, at least one account is credit, and you'll understand all this. Let's go slowly. So it means whenever we record a transaction, check the board. ऊपर वाला point. At least one account is debited and at least one account is credited. Yes. The total of amount debited should be equal to the total of amount credited. Now what is this? The total of, well, debit credit मतलब लेन देन, बराबर. वन इफेक्ट इज नोन एज लेना, वन इफेक्ट इज नोन एज देना. अब उसका बोलना क्या है? द टोटल ऑफ अमाउंट डेबिटेड शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ अमाउंट क्रेडिटेड. अब ये क्या बात हुई? क्यों? क्योंकि लेट्स टेक एग्जांपल अगेन, राइट? Sir, whenever we buy anything in life, okay, let's take an example. You and me, we go to a showroom. Say we go to a Nike showroom. Okay, we go to a Nike showroom and we try different kind of sport shoes. Okay, now you like a particular shoe and I also like a shoe. Barabar. Now the shoe what you like, when you ask the price, the showroom person, he says that shoe is for 14,000. The shoe what I like, when I ask for the price, he says that the price is 12,000. Okay, simple. Again a real life example. आप एक जूते के शोरूम में गए, आपको एक जूता पसंद आया जिसकी कीमत 14,000 है, मुझे एक जूता पसंद आया जिसकी कीमत 12,000. आपने 2 सेकंड में क्रेडिट कार्ड निकाल के 14,000 का पेमेंट कर लिया और जूते ले लिए. मैंने 12,000 नहीं दिए. सर क्यों नहीं दिए? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो जूते का वर्थ 12,000 है. ये मुझे नहीं लगता कि वो जूता वर्थ 12,000 है. एंड वेदर इट इज वर्थ इट और नॉट इज अ वेरी रिलेटिव मैटर. वेरी रिलेटिव मैटर. 14,000 का जूता आपको लगता है कि वो वर्थ है तो आपने खरीद लिया. 12,000 का जूता मुझे नहीं लगता कि वो वर्थ है, मैंने नहीं खरीदा. अरे सर पर आपके पास पैसे है ना, प्रॉब्लम क्या है? इट्स नॉट अबाउट मेरे पास पैसे है कि नहीं, इट्स अबाउट मुझे वो परवड़ता है कि नहीं परवड़ता है. ये बहुत कॉमन वर्ड है हमारे नागपुर में. कौन सा वर्ड? परवड़ना. परवड़ना. आपको लगता है आपका जूता आपको 12,000 में 14,000 में परवड़ता है, आप खरीद लेते हो. मुझे लगता है मुझे नहीं, मैं नहीं खरीद लूं. यस, लेट मी गिव. ये मैं क्यों समझा रहा हूं? वाई डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट. ये सारे आंसर्स यू चेक इट आउट. आई रिपीट, यू चेक इट आउट. You will not find any author across the nation who will explain you कि why this happens. They'll just tell this is the way it happens. But why it happens? Why? पहले तो दो डबल लाइंस क्यों यूज करते हैं? तो लेन देन मैंने समझाया. अब दोनों लाइन का टोटल इक्वल क्यों होना चाहिए? डेबिट का और क्रेडिट का क्यों इक्वल होना चाहिए? That is what I am explaining. See, I'll correlate all the examples. Okay. Now you go for a coffee. You go for a coffee with your friend. Okay. Now, depending upon who the friend is, you will go either to CCD to have a coffee, you will go to Barista to have a coffee, you will go to Starbucks to have a coffee. Okay. If you go here, for 2 people, the bill would be around 250. You go here, would be around 500. You go here, would be 1,000. Okay, let's us, well, we really don't have Starbucks in Nagpur. Barista, we have it. It closed down and it again opened at another place near Shankarnagar, but that's okay. Now CCD Barista. Do every time you go with all your friends to CCD or Barista? Sometime you can also go to a South Indian restaurant to have a filter coffee. What I just want to ask you is कि फ्रेंड्स के अनुसार अगर आप 2-3 बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हो, राइट, विद नो फॉर्मेलिटीज एट ऑल, तो आप एक वो हमारे नागपुर में कॉमन वर्ड एक रोड साइड जो चाय वाला होता है, क्या कहते हैं उसे, टपरी, आप वहां जाके भी पी सकते हो. तो चाय 2 रुपए की भी आती है, चाय 200 रुपए की भी आती है. यस. पीवीआर में जाके आप 250 रुपए का पॉपकॉर्न खरीदते हो इंटरवल में. यस. आपने आज तक लाइफ में जो भी खरीदा है और आगे आप जो भी खरीदोगे,
आपके मन में एक ही क्वेश्चन चलता है कि ये प्राइस में ये प्रोडक्ट मुझे परवड़ता है या नहीं परवड़ता। इफ यू थिंक इट इज वर्थ इट, यू विल बाय इट। इफ यू थिंक इट्स नॉट वर्थ इट, यू विल नॉट बाय। कम ऑन, यस। मुझे पीवीआर में जाके 250 रुपए का पॉपकॉर्न खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरी वाइफ को अच्छा लग सकता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे उसकी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता। जिस भी चीज में आपको भी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता, आप कभी नहीं खरीदते। आप वॉच का एग्जांपल लीजिए। व्हाट इज अ फेमस ब्रांड ऑफ वॉच विच यू पीपल वेयर? प्रोबेबली इट विल बी फास्ट ट्रैक और इट कैन बी समथिंग एल्स लाइक टॉमी हिलफिगर और समथिंग लाइक दैट। यस, what is the watch which I wear? I would be wearing a Tag Heuer or Rolex or something like that. Now you don't buy a Rolex, yes? Do you buy a Rolex for you right now? No, you don't buy a Rolex for you. By and large, you don't buy. Why? नहीं सर, वो हमको नहीं जमता सर 5 लाख की घड़ी लेना, हमको नहीं जमता। What do you mean by नहीं जमता? पापा लेके देने को तैयार है, आप नहीं लेते, क्यों? आपको नहीं लगता कि वो परवड़ता है। What I want to say is, लाइफ में हम जब भी कोई चीज खरीदते हैं, हमको लगता है कि वो उतना वर्थ है, तब हम खरीदते हैं। मतलब अगर मैंने एक लुई फिलिप का शर्ट खरीदा, कम ऑन, तो लुई फिलिप का शर्ट मेरे वार्डरोब में आ रहा है, द शर्ट इज कमिंग इन एंड द कैश इज गोइंग आउट। द शर्ट इज कमिंग इन एंड द कैश इज गोइंग आउट। सपोज द शर्ट इज ऑफ 2800, तो कैश मेरा 2800 जा रहा है और मेरे लिए जो शर्ट आ रहा है ना, वो मेरे हिसाब से उसका वर्थ 2800 रुपए है। यस यस, तभी तो मैं शर्ट खरीदूंगा। अगर मुझे लग रहा है ये लॉस का सौदा है, अरे कोई शर्ट का 400 रुपए से ऊपर थोड़ी ना होता है, तो मैं नहीं खरीदूंगा। पर अगर मुझे लग रहा है इट इज वर्थ इट, ये परवड़ रहा है, ये मैं खरीद सकता हूं, तो आई विल बाय इट। यस, मतलब एक हाथ से अगर मैं देखूं तो मेरे हाथ से 2800 रुपए कैश जा रहा है, बट एट द सेम टाइम 2800 रुपए का शर्ट मेरे पास आ भी रहा है। शर्ट आ रहा है, कैश जा रहा है, और दोनों की वैल्यू 2800 है, तभी तो मैं कर रहा हूं। काफी बार आपने आपके पापा को बोलते हुए सुना होगा, तेरा दिमाग ठीक है, कोई कॉफी के लिए 500 रुपए देता है क्या? काफी बार आपने सुना होगा ये। क्यों? बाय एंड लार्ज हमारे मॉम डैड बारिस्ता में जाके कॉफी नहीं पीते, क्योंकि उन्हें वर्थ नहीं लगता। कमाते वही है, पर वो नहीं पीते क्योंकि उन्हें वर्थ नहीं लगता। तो हम लाइफ में वही चीजें करते हैं जो हमें वर्थ लगता है। मतलब हम उन्हीं चीजों का लेन देन करते हैं। आई एम यूजिंग दिस हिंदी लैंग्वेज। हम उन्हीं चीजों का लेन देन करते हैं जहां हमें लगता है कि हमने जितने की वस्तु ली, हमने उतना ही पैसा दिया। जब हमें लगता है तभी हम वो सौदा करते हैं, वरना हम वो सौदा नहीं करते। दैट इज द लॉजिक व्हाई अकाउंट सेज दैट डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट, बिकॉज लेन इज ऑलवेज इक्वल टू देन। मतलब आप उसी चीज पे पैसा खर्चा करते हो जो आपको लगता है कि वो उतना वर्थ है। अगर आपको नहीं लगता कि वो वर्थ है, तो आप खर्चा ही नहीं करते। यस, सो आज हमने अभी वो 2 लॉजिक्स याद देखे। एक तो अकाउंट्स में डबल इफेक्ट्स क्यों होते हैं, वो हमने देखा। यस, बिकॉज एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स, लेन एंड देन, इसलिए डबल एस्पेक्ट्स होते हैं, डबल इफेक्ट्स होते हैं। और वो दोनों इक्वल क्यों होते हैं? क्योंकि जब तक वो इक्वल ना हो, हम कोई सौदा नहीं करते। काफी बार आपने रियल एस्टेट में सोचा होगा, कोई बंदा आपके पापा के पास जगह बेचना है, वो अगर आपको बोलता है कि 5 करोड़ रुपए एकड़ जगह है, वर्धा रोड पे हाईवे पे 5 करोड़ रुपए एकड़ जगह है। पापा को बहुत बार आपने बोलते हुए सुना होगा, नहीं यार 5 करोड़ में नहीं परवड़ता। सुना है कि नहीं? पापा के पास 5 करोड़ होंगे, पर पापा क्या बोलते हैं? नहीं परवड़ता। तो डज पापा एंटर इनटू दैट ट्रांजैक्शन? नो, ही डजंट एंटर इनटू दैट ट्रांजैक्शन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ अकाउंट्स डेबिटेड। लास्ट पॉइंट देखिए, द नंबर ऑफ अकाउंट्स डेबिटेड मे और मे नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ अकाउंट्स क्रेडिटेड। देखिए दोनों में फर्क है, आप कंफ्यूज मत होइए। ये देखिए, अमाउंट डेबिटेड शुड बी इक्वल टू अमाउंट क्रेडिटेड, अमाउंट डेबिटेड शुड बी इक्वल टू अमाउंट क्रेडिटेड, बट नंबर ऑफ अकाउंट्स मे और मे नॉट बी इक्वल। व्हाई? लेट्स टेक एग्जांपल अगेन। ये देखिए, आपने एक घड़ी के शोरूम में जाके घड़ी खरीदी, तो वॉच और कैश 2 चीजें इन्वॉल्व थी, वॉच आई और कैश गई। यस, तो 20,000 की वॉच आई, 20,000 का कैश गया। 1 इज डेबिट, 1 इज क्रेडिट। तो नंबर ऑफ अकाउंट डेबिटेड इज 1, नंबर ऑफ अकाउंट क्रेडिटेड इज 1 एंड द अमाउंट इज ऑल्सो इक्वल। यस, ये सबको समझता है।
अब देखिए, मैं मैं मॉल में गया, बराबर, एक मॉल में गया, मैंने वहां से शर्ट भी खरीदा, मैंने वहां से ट्राउज़र भी खरीदा, मैंने वहां से बेल्ट भी खरीदा, मैंने वहां से शूज़ भी खरीदे, यस, और मैंने सामने वाले को कैश दिया। अब हुआ क्या? तो ये भी डेबिट, क्यों डेबिट होगा मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने अभी तक नहीं समझाया। DRS डेबिट, CRS क्रेडिट। वेल यहां शर्ट मैंने 2000 का खरीदा, ट्राउजर मैंने 3000 का खरीदा, बेल्ट मैंने 2500 के खरीदे, शूज मैंने 5000 के खरीदे और कैश मैंने 12,500 रुपए दिया। यस। अब यहां देखिए, नंबर ऑफ अकाउंट्स डेबिटेड आर 4, नंबर ऑफ अकाउंट्स क्रेडिटेड इज 1। वाई बेटा मैंने नहीं समझाया कि ये डेबिट क्यों हुआ, ये क्रेडिट क्यों हुआ, ये अभी तक समझाया नहीं। वी आर गोइंग वेरी स्लो। पर एटलीस्ट ये तो समझ रहा है, हमने 4 वस्तु ली और 1 वस्तु दी, ये तो समझ रहा है। लेन देन, 4 वस्तु ली और 1 वस्तु दी, लेन देन। यस यस। तो नंबर ऑफ अकाउंट्स डेबिटेड इज 4, नंबर ऑफ अकाउंट्स क्रेडिटेड इज 1, दैट्स ओके। नंबर एक एक रहे, एक दो रहे, दो एक रहे, चार एक रहे, 100 एक रहे, 1000 रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द वैल्यू, चेक दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। द वैल्यू डेबिटेड इज इट इक्वल टू वैल्यू क्रेडिटेड? 2000 और 3000, 5 5 और 2.5, 7.5, 7.5 और 5, 12.5। द अमाउंट डेबिटेड इज 12,500 एंड द अमाउंट क्रेडिटेड इज ऑल्सो 12,500। इस तरीके से अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है दैट द टोटल ऑफ डेबिट शुड बी इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट व्हेन इट कम्स टू अमाउंट। व्हेन इट कम्स टू अकाउंट, they may be equal, may not be equal. 4 accounts are debited, 1 account is credited. चलिए, इट्स टाइम टू राइट डाउन, फिर हम और चलते हैं। ये लिख लिया सबने, देख लीजिए वापस। ये हेडिंग थी फ्रेश पेज पे, ये सबने लिख ली थी, ऑल ऑफ यू, ये सबने लिख लिया था, यस। उसके बाद ये जर्नल के 3 पॉइंट्स आपने लिख लिए थे। ये वाला पॉइंट कल से पेंडिंग है, रूल्स ऑफ अकाउंट्स, हमने सिर्फ लिख लिए थे, अभी तक सिखाए नहीं, तो आपको समझा ही नहीं अभी तक कि डेबिट कब यूज करते हैं, क्रेडिट कब यूज करते हैं। विल लर्न इट। ये लिख लिया था सबने, ऑल द 3 पॉइंट्स, यस। नाउ प्लीज राइटिंग, प्लीज स्टार्ट राइटिंग दिस जर्नल एंट्री, और प्लीज खुला खुला लिखिए, एक एक दो दो लाइन छोड़ के हेडिंग दीजिए। द नेक्स्ट हेडिंग इज जर्नल एंट्री, प्लीज राइट डाउन, गिव द हेडिंग and divide those points. You can write 1 2 3 4, you can put at the tick like it is on the board. I'll appreciate if you write it a bit fast. I'll be scrolling down in 10 seconds. So if you have not written, please pause the video. Let's move. Please write down. There is a overlapping point. Don't repeat it, okay? Please write down.
फाइन. तो y डबल इफेक्ट्स, y द y फैक्टर, द q फैक्टर, y डबल इफेक्ट्स, क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट होते हैं, लेन देन, एंड वाई बोथ ऑफ देम शुड बी इक्वल, क्योंकि अंटिल दे आर इक्वल यू विल नेवर एंटर इनटू अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. फाइन. लास्ट में देखो लिखा है नंबर ऑफ अकाउंट्स डेबिटेड may or may not be equal to number of accounts credited, but second last one, the amount should be equal. I've given you example also. एक घड़ी खरीद के कैश देते हो, तो घड़ी आ रही है, कैश जा रहा है, 1 डेबिट 1 क्रेडिट एंड द अमाउंट इज इक्वल. बट 4 चीजें खरीद के कैश दे रहे हो, तो 4 चीजें आ रही है और कैश जा रहा है, तो नंबर ऑफ अकाउंट्स डेबिटेड एंड क्रेडिटेड मे और मे नॉट बी इक्वल, but the amount has to be equal, because until an announced amount is equal, why will you buy it? Yes. Now dear all, ये दो लेक्चर्स जो थे ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स लैंग्वेज को फील करने के लिए थे. अभी तक एक भी स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आया है कि रिकॉर्ड करते कैसे हैं. हाँ, ये समझ गया 2 लाइन कम से कम प्रयोग करना ही है, बट which account to debit, which account to credit, how to follow the rules what you taught us yesterday. कौन सा रूल? पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंस क्रेडिट द इनकम. सर ये कब पढ़ाएंगे? नेक्स्ट क्लास में. ये देखो आपको एक टीजर दे देता हूं मैं नेक्स्ट क्लास का. चेक दिस. डियर ऑल, आई लेट मी टेल यू इन 1 minute so that you will correlate. See, when I did my standard 12th, okay, that was in 1998 when I passed my standard 10th. Most of you were not even born that time. But that is the time when I did my standard 12th, and standard 12th I did in 1998. When I did 12th, CBSE did not have commerce in Nagpur. So in Nagpur, if you have to do 11th, 12th CBSE, it was only science. So I took science in 11th, 12th. After 12th, मुझे ये समझ गया कि साइंस मुझे समझ नहीं पा रहा है. साइंस मुझे नहीं समझ पा रहा. सर आपको नहीं लगता? आपको बोलना चाहिए आप साइंस को नहीं समझ पा रहे. नहीं, साइंस मुझे नहीं समझ पाया, मैं क्या करूं? So I shifted to commerce and I started doing chartered accountancy. Well, सबको ये पता है कि विपुल वोरा cleared chartered accountancy in first attempt and he was a chartered accountant at the age of 21. That's okay. But I had a horrible time with this subject, that is accounts. Because I came from science background 11th, 12th and then I joined my CA classes. But most of the students who joined CA classes with me came from commerce background. Yes? तो वो एकदम फास्ट आंसर देते थे और सर भी आगे बढ़ जाते थे और हमें समझ में ही नहीं आता था. Just imagine in today's class, okay, you have no background of accounts and I start with journal entries and all of a sudden we pick up a speed. What will happen to you? That is what happened to me and I had a horrible, terrible time with accounts. So what did I do? After passing 12th, after entering into CA, I purchased the books of standard 11th state board accounts. और 11th स्टैंडर्ड की स्टेट बुक की किताबें पढ़ पढ़ के मैंने खुद के लॉजिक्स डेवलप किए. राइट फ्रॉम द फर्स्ट लॉजिक की जर्नल एंट्री कैसे पास करें, जर्नल नाम की किताब में रिकॉर्ड करना है, डेबिट और क्रेडिट की मदद से रिकॉर्ड करना है, पर करूं कैसे? हाउ डू आई डू इट? राइट फ्रॉम द स्क्रैच आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक्स ऑन माई ओन, मेकिंग माई ओन लॉजिक्स एंड अप्लाइंग इट. एंड ऑब्वियसली आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम I was really good in accounts and it was a very smooth language for me because eventually it's a logical language. तो उस टाइम पे 1998 में मैंने कुछ स्टेप्स बनाई थी मेरे लिए कि जर्नल में हम जब एंट्री करें तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए, वो स्टेप्स जो मैंने 1998 में बनाई थी आज भी मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूं क्योंकि इतनी फुल प्रूफ स्टेप्स है कि एक बार ये स्टेप्स आपको समझ गई तो आप जर्नल में रिकॉर्ड करने में कभी कोई गलती नहीं करोगे. मतलब अकाउंट्स आपका एकदम अल्टीमेट हो जाएगा. यस, दीज वेर दो स्टेप्स टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन जर्नल. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4. Only 4 steps. And if you follow these steps,
you will never make a mistake in your life in accounts. तो सर ये आप 4 स्टेप कब सिखाओगे? नेक्स्ट क्लास में. तो पहली 2 क्लास, कल की और आज की, was just to make you feel about this language. अभी तक मैंने आपको ये नहीं सिखाया है कि रिकॉर्ड कैसे करते हैं रूल्स लगा के. बट नेक्स्ट क्लास इमीडिएटली वी आर स्टार्टिंग विथ हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन जर्नल एंड वी आर स्टार्टिंग विथ द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, राइट? सो वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास. यू आर गोइंग टू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ टाइम, आई अश्योर यू दैट. फिलहाल बस इतना करिएगा. ये 2 दिन की जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है, जो आपने रजिस्टर में लिख लिया है, हाफ एन आवर स्पेयर करिएगा. इट विल नॉट टेक मोर देन 30 मिनट्स. सो वेन एवर यू स्टार्ट लिसनिंग टू माई नेक्स्ट लेक्चर, जस्ट इंश्योर दैट आधा घंटे में आपने रजिस्टर के पन्ने पलटा के ये 2 लेक्चर्स पूरी तरह से रिवाइज कर लिए. रटना नहीं है, सिर्फ पढ़ के रिवाइज करके आना है. एंड नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ फॉर एवर, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम यू लर्न how to record things in accounts. Have a great time. We continue in next lecture. Thank you.